The Print of the Cuff, presented by IIFL Wealth and Asset Management, corporate partner AU Small Finance Bank, in alliance with Jindal Steel and Power Limited and Indraprastha Polo Hospitals, airline partner SpiceJet. This episode of Off the Cuff celebrates a rare happening in our politics and public debate, which is a serving minister, a senior politician, senior political leader, writing a book, a political book, and in partnership with a leading intellectual of the country who's not really from the party. This is a doubly rare occurrence. So we are here to celebrate the publication of Rise of the BJP, the making of the world's largest political party by Bhupendra Yadav, Cabinet Minister, Environment besides other things, former General Secretary, a rising star in the BJP, young man, and Ila Patnaik, Professor Ila Patnaik, who, as you know, is our economics teacher at the Print as well, the leading economist. And they have collaborated to write this book. And you know what? This fills a big gap in our understanding of Indian politics, because this is a city of pundits. Everybody in this city thinks that anything there is to know or learn, they already know, particularly in journalism and intellectual and political debate. The only thing we don't like consulting is primary sources. But for those of us who might want to consult primary sources, there is an excuse that where are the primary sources? So this fills that gap. Bhupender ji, आपको बहुत-बहुत बधाई. Thank you. और Ila, आपको भी. If you just hold up the book for a second, so that everybody can see it, and you don't have to agree or disagree with the party or politics or anything, but you have to read and you have to understand. So, Bhupender ji, ये idea कहाँ से आया? 2019 के इलेक्शन के बाद मेरी इलाजी से एक बार बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि बीजेपी दोबारा से पावर में आई है तो इसको एक पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि बीजेपी एज ए पार्टी कैसे सामने आई। उसके बाद जब उस विषय को कहा तो फिर बातचीत में से आइडिया आया कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये पार्टी अगर दोबारा पावर में आई है तो इसका मैकेनिज़्म, डिसीज़न लेने का मैकेनिज़्म, इस पार्टी में पार्टिसिपेशन, इस पार्टी का रोल, इस पार्टी में किन किन लोगों ने काम किया, क्योंकि 70 साल की राजनीतिक यात्रा अगर नॉन डायनेस्टिक तरीके से की गई है तो कौन से वैल्यूज़ और कौन सी पर्सनालिटीज़ थे जिनके कॉम्बिनेशन से, उनके वैल्यू और उनकी पर्सनालिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से पार्टी बनी। सो फिर मैंने जो बीजेपी का, क्योंकि सबसे पहले जनसंघ को लेकर के जो किताब लिखी थी वो ग्रेग बक्स्टर ने लिखी थी। बाद में जब अडवाणी जी और अटल जी के समय में एक बीजेपी का एक डॉक्यूमेंट बना था, लेकिन उसको कोई बुक का स्वरूप नहीं था। उसको मैंने स्टडी किया। फिर इलाजी का एक और विषय उसमें सुझाव था कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों साथ चलनी चाहिए। तो मेरा उनको था कि जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी चलनी चाहिए तो पॉलिटिक्स मैं लिख सकता हूँ, इकोनॉमी अगर आप लिखें तो अच्छा रहेगा। तो ये हमारा लिखने का एक शुरुआत हुआ। और कोविड काल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको मिला, क्योंकि समय भी था और काम करने को खूब था, तो समय भी हो गया, विषय भी हो गया और एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, और फिर हमने मिल करके किताब लिखी। तो इला, how was this experience for you? I think this is the first time you worked so closely with not just any politician, but a full-time 26 hours a day politician. Yeah, it was an amazing experience. It was a huge learning experience. Not just, did we get access to materials, all the information inside, but I think what was amazing was just the discussions that we had. And I would ask lots of questions, as you can imagine. Why did this happen? Why is such and such a thing being done? And, to my surprise, I would get very honest answers. So, I had never worked closely with the politicians, and one sees politicians as those who do politics and don't really answer questions. They deflect them most of the time. So, for me, it was a, very, very enjoyable learning opportunity. Because this is a kind of question that we ask, say, जावेद अख्तर या सलीम साहब जब इंटरव्यू करते हैं
कि आप सलीम जावेद कैसे स्टोरी लिखते थे. How did you write Sholay together? So somebody said, ठीक है, I used to write the first sentence, he used to write the second sentence. So working together on a book when you are from completely diverse backgrounds is a challenge. How did you address it? And how did you and Ila discover each other? जो उसका बीजेपी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था वो निश्चित रूप से मैं इला जी के सामने मैंने उन विषयों को रखा और मुझे लगता है हमारा लगभग 700 आवर से ज़्यादा का डिस्कशन हुआ होगा और कोविड के समय में वर्चुअल डिस्कशन के लिए भी समय बहुत था और फिर सबसे ज़्यादा बुक में अगर आप देखेंगे तो 250 से ज़्यादा रेफरेंसेस हैं और ऐसा नहीं है कि जो रेफरेंसेस हैं हमने केवल राइटिस्ट ग्रुप्स की तरफ से लिए जो बहुत बीजेपी के क्रिटिक्स भी रहे हैं या जो इस देश में बहुत बड़ी पर्सनालिटी रही हैं जैसे प्रणब मुखर्जी बड़ी पर्सनालिटी रहे, I.K. गुजराल बड़ी पर्सनालिटी रहे, शांति भूषण बड़ी पर्सनालिटी रहे, तो उन्होंने जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में लिखी गई उन सबको भी हमने इसको बेस बनाया और मेरा ये मानना था कि एक बाहर से देखने वाले व्यक्ति को जो बीजेपी की जो एक यात्रा है, नरेशन क्या था, बीजेपी की जर्नी का नरेशन क्या था, उसको लिखने का प्रयास किया और जो हुआ है वो हमारा दोनों के कंट्रीब्यूशन से हुआ है. And how did you first come across each other? So, you know that I work on financial sector laws, and Right. Bhupinder ji was in a number of parliamentary committees, standing committees on some of those laws, like the FRDI bill, and that's how we were interacting prior to 2019 when we started on the book. When he was still a full-time party person. Absolutely. He was a full-time party person and Rajya Sabha MP, and as MP, he was heading some of these committees. So who broached the idea of the book first, you or he? Well, I think I said these are questions that I want answers to, and I'm sure many other people do. So why don't you write a book? And he said, okay, let's do it together then. So, Bhupinder ji, what does this book do? What gap does it fill that existed as yet? एक्चुअल में अगर आप लगातार बीजेपी के नरेटिव को देखेंगे तो नरेटिव को या तो कुछ लोगों के बयानों से पहचाना जाता है या नरेटिव को एक दो इंसिडेंट से पहचाना जाता है या जिसने जिनको पर्सनली अप्रोच किया उनसे नरेटिव को पहचाना जाता है. लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल यात्रा में कांग्रेस जैसी जो बड़ी अम्ब्रेला पार्टी बनी जिनको आज़ादी के आंदोलन की एक क्रेडिबिलिटी भी मिली, हालांकि गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग करना चाहिए और लोगों को भी उस दृष्टि से कांग्रेस ने लगभग 50 साल तक देश में राज किया. और अगर आप आज़ादी के बाद भी देखोगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी पार्टियां लगातार देश में रजिस्टर्ड होती रही. मतलब सुचेता कृपलानी जी ने निकल के हिंद मजदूर किसान पंचायत बनाई, लोहिया जी ने कांग्रेस से निकल के समाजवादी पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उस समय बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया. नीचे जो अन्नादुराई ने एक द्रविड़ मूवमेंट को शुरू किया. बीच के अकाली भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया. फिर बीच में जैसे शिवसेना जैसी पार्टी आई या उसके बाद भी 80s के दशक में छात्र आंदोलन से निकल करके आसाम गण परिषद पार्टी आई और हिंदुस्तान में लगभग 1200 से ज़्यादा पार्टियां बनी हैं. एक और छात्र आंदोलन से ही कहेंगे जो एसपी, बीएसपी, एसपी और आरजेडी टाइप के जो लोहियाइट हैं लोग. एक्चुअल में समाजवादी पार्टी के फिर दो तीन हुए. प्रजा सोशलिस्ट हुई, एक सोशलिस्ट पार्टी हुई. सोशलिस्ट हुई. तो उस समय जो दौर में थे मधु दंडवते थे, मधु लिमे थे या मृणाल गोरे थी या राम मनोहर लोहिया थे, उनकी आइडियोलॉजी के कारण लोग फिर अलग हुए. फिर उसमें समाजवादी पार्टी की धाराओं में स्प्लिट हुआ. लेकिन मूलतः ये समाजवादी पार्टी के पिंड से निकले हुए लोग थे और जो एक समय में बड़े इन्फ्लुएंसिव भी थे. मतलब समाजवादियों की संख्या, कम्युनिस्ट की संख्या बीजेपी से कहीं ज़्यादा थी, मतलब चुने जाने के संबंध में और क्षेत्रीय व्याप की दृष्टि से. बीजेपी को एक उत्तर भारतीय पार्टी और शहरी वर्ग की पार्टी माना जाता था. तो एक उत्तर भारतीय शहरी क्षेत्र की पार्टी से पैन इंडिया काम करना, लगातार जाना
और बिना डायनेस्टी के डिसीजन मेकिंग पार्टी से देश की मुख्य धारा की पार्टी बनना, तो पार्टी ने कंसिस्टेंसी से लेकर के एक 1952 से लेकर 2019 तक लगातार रेजोल्यूशन पास किया, कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। देश में जो निर्णय होने थे, जैसे इमरजेंसी आई तो अपनी पार्टी को मर्ज करना, वीपी सिंह का समय आया तो अपनी पार्टी को कम्युनिस्टों के साथ सपोर्ट देना, बिल्कुल, हाँ। या 67 में एक विषय आया कि जनसंघ कम्युनिस्टों के साथ राज्य विधानसभाओं में शामिल हो या ना हो। तो हर 10 साल में, चाहे 67 की संविध सरकार हो, चाहे 77 की जनता पार्टी का विषय हो, चाहे 89 का वीपी सिंह का समय हो, चाहे फिर 98 में अटल जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनाना, तो बीजेपी जो एक समय में कम्युनल करके अनटचेबल मानी जाती थी, वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पार्टी बनी। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका नरेशन जानने के लिए बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया। वही बात मैं भी कई बार कहता था कि देखिए, लेफ्ट वाले कांग्रेस को कहते हैं, जब कांग्रेस यूपीए सरकार थी, कि आप बिल्कुल बीजेपी से, शिवसेना से बात मत करो, लेकिन जब उनका अपना मौका आता है तो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। वीपी सिंह के समय मिले और न्यूक्लियर डील के वोट पर मिले, ऐसे ही मल्टी ब्रांड रिटेल के वोट पर मिले। तो ये आप सोचेंगे बीजेपी की सबसे बड़ी चैलेंज नेशनल पॉलिटिक्स हैज़ बीन to find acceptability from others. Is that true? मैंने इसमें दीनदयाल जी को कोट भी किया है। इवन दीनदयाल जी ने 64-65 में अपने भाषण में एक शब्द का प्रयोग किया था कि अनटचेबिलिटी ये सोशल स्टिग्मा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकली चल रहा है। और हमें जिसने छोड़ा उसने एकदम ये कह कर के छोड़ दिया कि कम्युनलिज्म है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पहले रेजोल्यूशन से लेकर अब तक देखेंगे तो अपने विचार के स्तर पे, गवर्नेंस के स्तर पे एक तरह की सुसंगतता और नियमितता पार्टी में रही है। और पार्टी ने हर 10 साल में 15 साल में एक नई लीडरशिप रोपिन हुई है, जो अन्य पार्टियों में देखने में नहीं आता है। जैसे जब अटल जी, अडवाणी जी 64-65 में जब थे, उसके बाद आप देखेंगे तो 77 में कृष्णलाल शर्मा जी जैसे लोग आए। फिर 80s के दशक के बाद प्रमोद जी, अरुण जी, सुषमा जी, वेंकैया जी, ये सब लोग आए। फिर राजनाथ सिंह जी के साथ भी आप देखेंगे तो उस समय नड्डा जी, धर्मेंद्र जी, शिवराज जी, ये लोग आए। फिर अमित भाई के साथ भी एक नई टीम आई। तो हर 10 साल 15 साल में एक नई लीडरशिप को रोप इन करना, उनकी पर्सनैलिटी आगे बढ़ना और एक कलेक्टिव तरीके से डिसीजन मेकिंग करना, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं या उसको सामने नहीं लाया गया। तो हिंदुस्तान की राजनीति में अगर आप वैकल्पिक रूप से स्थापित हुए हो कांग्रेस के और एक स्थायी पार्टी बने हो, तो उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को जानना, उसकी कार्य पद्धति को जानना, उसके निर्णयों को जानना और उन पर्सनालिटीज़ को जानना, ये यात्रा बहुत बड़ी है। एक पुस्तक उसके लिए छोटी है, लेकिन जो भी प्रयास किया है एक विनम्रता के साथ किया है। नहीं, पुस्तक उसमें बहुत अच्छा एडिशन है। और मैं आपको बता दूं कि आप कभी ये सोचें कि हम बाहर बैठे हुए हैं और बिना मास्क के और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम कोई गलत उदाहरण किसी के लिए सेट नहीं कर रहे। एक तो बाहर है आउटडोर, वो थोड़ा इंडोर से ज़्यादा सुरक्षित होता है, इट्स सेफर देन इंडोर्स आउटडोर्स। एंड सेकेंड, इवन नाउ, just so that we are not seen to be setting a bad example, and also to protect two very important people, we are using these partitions between us. So never give up on these precautions. Please keep your masks on and please keep your social distancing and take whatever precautions you can take, because there is no inevitability to everybody getting infected. We should not be resigned to that fate. Having said that, before I come to Ilan, you said, I agree, because the first election campaign I saw as a child, I was 10 years old, was the 67 campaign. And my father was then posted in Sirsa, and you can imagine what Sirsa was like in 67. It was a reserved seat, parliament, and Chaudhry Dalbir Singh, the father of Kumari Shelja, he was contesting there, and we've seen Maniram Bagdi and others campaigning. But even then, and I remember we used to go with hujums in the evening and during the day, and what we used to get was some badges and flags. बच्चों को और क्या चाहिए? So दिया हमको याद है. और nobody took जनसंघ then seriously. Everybody said ये तो, because nationalism was not something that जनसंघ was able to take.
even religion. And people thought Arya Samaj, okay, partition, okay. How did the BJP break that? And I know there's a lot of description of that here. So my trick question is that you found acceptability in the political mainstream. Why not among the minorities of India? ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहता हूँ। इस पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। गोवा लार्जली माइनॉरिटी डोमिनेटेड स्टेट है, बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में माइनॉरिटी की एक बड़ी संख्या है, बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल में भी बौद्धिस्ट हैं, बीजेपी की सरकार है। इवन ये ठीक है हमारा गठबंधन टूटा, लेकिन जम्मू कश्मीर एक मेजर माइनॉरिटी स्टेट है, बीजेपी कोalition में रही है। पंजाब में भी बीजेपी कोalition में रही है। तो ये जो एक मिथ खड़ा कर दिया है बीजेपी के लिए, नागालैंड तो 90% से ज़्यादा क्रिश्चियन है, बीजेपी की हमारी सरकार है, हमारे 6 MLA हैं, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मेघालय एकदम माइनॉरिटी डोमिनेट, बीजेपी का कोalition है। तो ये एक जो पूरे देश में एक मिथ खड़ा कर दिया जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी मतलब एंटी। और जब हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, हाँ, हमारा स्पष्ट रूप से बीजेपी का मानना है कि ये जो देश है ये एक सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है और जो वैल्यूज़ ये देश लेके जिया उन वैल्यूज़ को आगे आना चाहिए। लेकिन वो वैल्यूज़ किसी की पूजा पद्धति में, किसी चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अपने वैल्यूज़ पे, अपने मॉरल पे, अपने कल्चरल नेशनलिज्म पे गौरव होना ये किसी के विरोध में नहीं है, पॉजिटिव है। आडवाणी जी ने जो एक उस समय विषय दिया था और देश में पॉलिटिकली चला था, सूडो सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म क्या है। और बीजेपी ने जो लड़ाई लड़ी है, जो नेहरू जी के समय से कम्युनल पेंट किया गया, जिसको मैंने दीनदयाल जी ने भी अपने भाषण में कहा कि हमको पॉलिटिकली अनटचेबल बनाया गया, ये एक कॉन्स्पिरेसी थी। और अपनी गवर्नेंस के माध्यम से हमने उस विषय को पूरा करने का काम किया है, उस गैप को भी फिलअप किया है। Ila, how important, this is ideological politics. Right? BJP is the most ideological of our political parties besides the left. Where does economics or where does the economy feature in this? How important or how crucial is the economy? Because there is culture, there is history, there is nationalism. Does economics matter? I think it matters much more than what the mainstream media has given it credit for. So when we look at what the government did and how the party took it forward, the Modi 1.0 and how the party took it forward, all the welfare programs, the Labhartis, contacting the poor, it's almost like doing social audits of their welfare programs. I think a lot of it was influence the politics, influence the outcome. So this two-way relationship that we see between government and politics is very, very important. In fact, what we try to do here is we trace the economics back to the NDA-1 as well. When the NDA-1 laid the foundations for telecom, for infrastructure, stuff that was done later where you reached out to people, where you did direct benefit transfers, all of them required telecom, all of them required roads, banking infrastructure, and so on. So there is this continuity of the party trying to reach out to the common man and the poorest of the poor, and the cutting out of middlemen. That happened in these DBT transactions that were done, a whole new way of doing things and reaching out to people. Ila, that's more like quality of governance at the ground level, or more like efficient distribution. Is that economics? That's very much economics. Economics is about growth and redistribution both. And I think any political party, including what we see here, tries to do this balance between growth and redistribution, because you tilt too much on one side and people think that, oh, you're anti-poor and pro-rich, but yet if you don't get growth, what are you going to redistribute? And that's the story that we see from the first BJP government, the NDA-1 government, to now, and how perhaps the balance needed to be tilted a bit, and that was one of the lessons that was learned from the India Shining
or the loss of elections in 2004 after India Shining. So I think the balance between growth and redistribution is very much economics. Economics is very much about redistribution as if well. you look at the last 7 years, growth has stalled. Growth is not at the same pace as before, but distribution is very efficient. Yeah, so my sense is that in the first period, in the first regime after 2014, realizing and building upon the lessons learned from the NDA 1, initially the basic infrastructure for redistribution was set first. Quietly, a number of changes that would improve growth were brought in. Some of them went through, some of them did not go through. So whether it was the building of the bond market, a bill that did not go through, or whether it was the privatization, which at least today we are in a place where a government is talking about privatizing banks, something that we haven't heard since 2004. And there is a widespread acceptance except from the unions. Exactly. There's now a widespread acceptance that yes, it is almost a consensus that yes, this is going to go through. Imagine Air India's privatization. That was something we thought, God, this is never going to happen. So there are these things where I think time, political consensus takes time. And I don't think governments want to rush into them and then have to withdraw them, but to allow the idea to seep into people's minds so that when they are very comfortable, like in the case of Air India, or we're seeing LIC, IPO will also happen. I mean, the stage is being set. And I think those actions, which actually mean a lot for growth, because it is reallocation of resources which are currently being badly reallocated because they are in the public sector. It means bringing competition into sectors like NDA 1 did in the telecom sector. I think those are the kind of quiet things that get done, because after all, your voter is going to be affected directly by redistribution, and growth people see as one step away. So, and we've seen that through various governments and various policies. Yeah, in fact, the fact that the redistribution is very efficient is something that we had figured in the 2019 election. And I think I did say some of this in a discussion, which got me some bad press on at least one side of the debate. But the fact is that you saw it. You saw people with their LPG cylinders, or toilets, or people with mudra loans, etc. So that distribution did matter. But Bhupinder ji, in all this, how big a setback on the economic side is the withdrawal of or repeal of agricultural reform bills is? एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल एक्चुअल में एक लंबे समय से इस देश में डिबेट के बाद लाया गया था। इवन कांग्रेस सरकार के समय में भी मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन, शांता कुमार जी की कमेटी भी थी। शांता कुमार जी की कमेटी भी थी। बाद में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी चेयरमैनशिप में कमेटी थी, और शरद पवार जी उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उनकी भी रिकमेंडेशन थी। लेकिन कभी कभी विषय ऐसा होता है जो पर्सपेक्टिव में अलग चला जाता है, और इसलिए इसको जो उस पर्सपेक्टिव के आधार पे जो निर्णय लिया गया है, मेरे को लगता है ये निर्णय ठीक लिया गया है। जहाँ तक देश के विकास की बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिपेंडेंट बनाने की बात है, सरकार ने जो सबसे बड़ा काम आकर के किया है कि लंबे समय तक 99 कृषि परियोजनाएं थी जो सिंचाई की, इरिगेशन की पेंडिंग पड़ी थी, उनको पूरा किया। अभी भी पिछले ही 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा केन बेतवा जो एक लंबी परियोजना थी, उसका इनॉग्रेशन किया गया। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुसुम योजना जैसी योजनाएं ला करके सरकार ने बड़ा काम किया। तीसरा, सरकार के द्वारा एमएसपी को भी निर्धारित किया गया है, और जो फसलें एमएसपी में नहीं थी उसको भी लाया गया है। फिर हमारे मानसून की खेती की जो अनिश्चितता है, उसके लिए सरकार के द्वारा किसान बीमा योजना भी लाई गई है। फिर इस देश में जो 90% छोटा किसान है, वो जब फसल बोने जाता है तो उसको नकदी चाहिए, तो उसके लिए
सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि भी लाई गई है। तो प्रधानमंत्री जी जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो उनका पहले दिन से है कि इसकी आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में काफ़ी काम किया। इरिगेशन पहुंचाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया है, इंश्योरेंस दिया है, उसके साथ ही साथ उनको नकदी भी उपलब्ध कराई है जो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। अब ये जो रिफॉर्म्स को एक व्यापक तरीके से करना था, उसको जो विड्रॉ किया प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपने सामने किया, मेरे को लगता है उनके कहने के बाद ये विषय यहीं समाप्त हो जाना ठीक है। लेकिन सरकार के जो किसानों की आय दुगना करने के विषय हैं ये लगातार जारी रहेंगे। लेकिन आप ये मुझे बताएं, आप राजनेता भी हैं और आप आइडियोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, फिलोसॉफिकल बिलीफ भी हैं। अब ये सरकार ये रिफॉर्म कैसे लाएगी खेती में, क्योंकि अब ये लॉज तो पास जल्दी नहीं होने वाली। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना, उनको सिक्योरिटी प्रदान करना और उनके लिए ज़्यादा अच्छा बेहतर वैल्यू एडिशन करके उनके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना, जिन दिशाओं पे सरकार काम कर रही है। पंजाब हरियाणा है, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश, यहीं पे प्रोटेस्ट हुआ था और यहीं पे सबसे बड़ी समस्या है। और समस्या वही है कि जो वाटर गजलर क्रॉप्स हैं, पैडी और गन्ना, जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, अब एक्सेस भी है मार्केट में, तो उससे आप कैसे वीन अवे करेंगे इन्हें? अब एग्रीकल्चर पैटर्न को बदलना, उसके लिए जो छोटी फसलें हैं उस पर एमएसपी करना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बढ़ाना, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए प्रोत्साहन देना, देश में कृषि में नए रिसर्च को बढ़ावा देना, ये ऐसे फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसको सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। दूसरा, हमारे यहाँ जो पूरे देश का जो गरीब वर्ग है और ज़्यादातर गाँव में रहता है, तो शिक्षा, पानी, हर घर नल, बिजली, हर घर बिजली, उजाला योजना, एक्सेसिबिलिटी टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना और जनधन खाते, एक्सेसिबिलिटी, ये 5 चीज़ों को अगर हम नीचे तक लेके जाएंगे और नीचे तक ले जाने के साथ ही साथ आज जो एक बड़ा विषय हुआ है कि देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का मजदूर है उसको एक ई श्रम कार्ड के अंतर्गत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड भी किया जा रहा है, उसको भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। जब ये बहुत सारी चीज़ें निचले स्तर पर पहुंचेंगी तो उससे जो अगली पायदान चढ़ेंगे तो और रिफॉर्म्स के मेजर्स आगे आएंगे। Ila, when you were discussing this book and 700 hours of discussion, what were the issues of disagreements or arguments? Please tell us a couple of highlights. So I think some of the issues would be how much of what we want to explain. So for me, sometimes, you know, the economics issues would have much more importance, and I would say, नहीं हमें ये तो बताना ही है, ये तो बहुत ज़रूरी है. And you know, Bhupinder ji would say, I'm not sure your reader is very interested in these intricate details of your FSLRC or your, you know, PDMA or, you know, many of the technical stuff. So that was pretty much how we went from agreeing or disagreeing. हमारे about व्यूअर्स the के लिए आप content. बता भी देंगी ये FSLRC और PDMA क्या होता है? So, Financial Sector Legislative Reforms Commission had recommended a big change in financial sector laws. And I've been working on those, and actually so has Bhupinder ji. I mean, he's been working on them from the side of you, from the point of view of a lawmaker, and heading parliamentary committees on many of the bills, whereas I've been staff and researcher heading the team that was supporting the commission. And, you know, many of those issues I feel are very, very important for how India can grow and how we can become a market economy, and how incomes and GDP can be raised. So that's FSLRC. Out of that, the Public Debt Management Agency was to be set up by the government. A bill was actually brought in when I was in the finance ministry, but it was withdrawn by this government. And, you know, India needs a bond market. So that would have encouraged a bond market for India. So I think a lot of our disagreements were about the technicalities of what to put in and what not to put in. But tell me something honestly,
do politicians understand this kind of intricate economics? I was amazed at how much he understood this kind of economics. I think not only is he extremely well read, but in terms of understanding of law and economics, I think it's pretty amazing. And in fact, sometimes I felt that I was understanding it in a very technical way, whereas economists don't usually look at the law. Whereas with him, it was law and economics in the context of financial sector bills and acts that we. But did you also realize that for a politician, politics always takes precedence over everything else? Absolutely, politics takes precedence over everything else. But I think that's a politician's strength. I mean, I'll be saying things that I could even say them today on the show that would be politically incorrect, because we're not, that's not what we do. As a teacher, you're told to answer every question, never deflect a question, to, treat things differently, to try to explain something. A politician has to convey to you a particular point of view of the party he represents. So there's a difference there. So you worked with the UPA, right? Not really. I worked in the government, in the ministry. In the ministry, but not with the party, but in the ministry. And now you have seen a lot of the functions and a lot of the process of this government closely. Philosophically, on reform economics, where do you place them vis-a-vis each other? So, Shekhar, first, just to be clear, I worked for 15 days with the UPA government. Right. And then for 1.5 years with the NDA government, so with Modi 1.0. But in terms of the functioning, I think the UPA would spend many years on discussions. And one would start getting frustrated and get a sense of, nothing is happening. Here, the political leadership seems to be willing to take action, willing to move forward, even if later some of those things may need to be withdrawn. But that courage wasn't there. I mean, I did work with the previous government. I remember UPA 2, when we would be trying to push for some very small, a financial redress agency sort of a thing, where consumers could say that we are unhappy with the services provided to us. But every small thing would be, don't rock the boat. The basic philosophy was you don't want to rock the boat. And here I find that sometimes mistakes might be made, sometimes things may be withdrawn, yet there is this risk-taking approach to, okay, let's try this. If we are convinced that this is good for the common man, so we try it. Yeah. Bhupinder ji, I will also take some questions from our subscribers and my colleagues. So Siddharth Sharma, our subscriber, he says, how much is the administrative policy direction influenced by the RSS and its think tanks, especially when it comes to reforms? मेरे ख्याल स्वदेशी जागरण मंच की तरफ हिंट है. How does this happen? ये एक ऐसा भी विषय था जो शुरू में मेरे को इलाजी को भी समझाना पड़ा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी जो रिलेशन है, इसको ऐसा समझा जाता है कि जैसे बीजेपी को कोई डिक्टेट करके ऑर्डर नागपुर से आता है और फिर बीजेपी को उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ये एक सामान्य धारणा है. लेकिन मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में एक दूसरे को एडजस्ट करके चल सकते हैं, और कई बार ये ओपिनियन मुखर भी होती है. इवन अटल जी के समय में जो स्वदेशी जागरण के काफ़ी सारे ऐसे विषय थे, जब दत्तोपंत जी सरकार को WTO और बाकी के विषयों को लेके, हमने उसको बुक में नरेट किया है. हमने उसको नरेट किया है. तो ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स नहीं है जैसे दत्तोपंत जी कहा करते थे, क्योंकि वो आइडियोलॉग एक तरीके से राज्यसभा के भी मेंबर रहे, मजदूर संघ जैसा आंदोलन भी खड़ा किया, और बड़े आइडियोलॉग थे. मैं उनको बहुत नज़दीक से भी उनको देखा है. वो कहा करते थे कि हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है. हमारा लीडरशिप सबका अलग होगा. जैसे विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष हैं, तो कोई बीजेपी के अंडर में नहीं है. ABVP इज़ नॉट ए स्टूडेंट यूनियन ऑफ बीजेपी.
BMS इज़ नॉट ए ट्रेड यूनियन ऑफ BJP। तो हमारे लीडरशिप अलग अलग है, हमारे डिसीज़न लेने के भी तरीके अलग अलग हैं। संघ के भी संगठनों में अगर मजदूर संघ का एक डिसीजन का पैमाना हो सकता है, तो जो लघु उद्योग भारती है, जो मीडियम साइज उनका एक अलग विषय हो सकता है, ये मान करके चलता है। और तीसरा है फाइनेंशियली अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कोई मतलब मजदूर संघ चलता है तो कोई बीजेपी के फंड से नहीं चलता, अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना एक देने का तरीका। ये एक ऐसा डेलिकेट रिलेशनशिप है जो मॉरल ज़्यादा है, आइडियोलॉजिकल बाउंडिंग ज़्यादा करता है। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत भी रही है, जैसे एक घर में एक केवल खर्च करने वाला लड़का होता है, एक कमाने वाला होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान के स्पेस से चली गई, जैसे समाजवादी चले गए, कि नए कार्यकर्ताओं का आइडियोलॉजिकल निर्माण करने वाला नीचे कोई तंत्र नहीं था। कांग्रेस में भी एक समय सेवा दल से लोग आए, जब सेवा दल खत्म हुआ तो फिर नीचे केवल सत्ता के लिए लोग आए। बीजेपी को आरएसएस विचार परिवार के बैकग्राउंड के कारण लगातार ऐसी नई पीढ़ी मिलती रही जो उनके कार्यकर्ता के रूप में डेवलप होते रहे। इसलिए ये जो रिलेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ये इंटर डिपेंडेंट से ज़्यादा इंटर रिलेटेड जो रिलेशन है वो ज़्यादा है। मेरी एक साथी, नौजवान साथी हैं, पूछती हैं उन्नति शर्मा, इट इज़ ऑफन सेड दैट दिस बीजेपी इज़ नॉट द सेम एनी मोर, इट इज़ नॉट दिस बीजेपी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी एंड LK Advani, it is essentially the BJP of Narendra Modi and Amit Shah. What is your response? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा कि एक देश में एक विधान एक निशान, इसी ने पूरा किया। आडवाणी जी ने पालमपुर अधिवेशन में कहा कि यह राम मंदिर हमारा कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इसी बीजेपी ने पूरा किया। या दीनदयाल जी ने जो हमको आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी दी, अंत्योदय का दर्शन, गरीब आदमी का कल्याण, तो मोदी जी ने आकर सबसे पहले यही कहा कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। मैंने कहा ना, इसको बाहर से देखने वाले देख सकते हैं, लेकिन जो हम 1950 में कहते थे वही हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उसी को एवोल्यूशन मानते हैं, उसी का एवोल्यूशन, कोई रेडिकल शिफ्ट नहीं मानते हैं? रेडिकल शिफ्ट ऐसा है कि समाज जैसे जैसे बदलता है, समाज में जैसे जैसे धारणाएं बदलती हैं, अपने आउटलुक को लेकर, अपने ऑर्गेनाइजेशन ढांचे को लेकर। जैसे जब हमने पार्टी शुरू करी थी तो हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करना चाहिए, SC ST माइनॉरिटी। तो 86 में जब बीजेपी 84 में चुनाव हारी तो कृष्णलाल शर्मा जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और बीजेपी ने मोर्चे बनाए। मोर्चे के बाद लगा कि नहीं, पार्टी को एक्सपेंशन करना है तो रिटायर्ड सैनिकों में जाना चाहिए, ट्रेडर्स में जाना चाहिए, तो सेल बनाने शुरू करें। अभी जब 2014 के बाद लगा कि दुनिया डिजिटल हो रही है तो पार्टी को डिपार्टमेंट भी बनाने चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जैसे IT डिपार्टमेंट है, मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट है। तो अभी बीजेपी 19 डिपार्टमेंट में भी लेकर के आई। लेकिन जो हमारा फ्लो है वो हम ये मानते हैं कल्चरल नेशनलिज्म और गरीब कल्याण, वो तो एक व्यू है। लेकिन पार्टी को जैसे जैसे आवश्यकता हुई, पार्टी ने अपने आप को चेंज किया, मैनेजमेंट से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, विचारों को कंटिन्यू रखा है, लेकिन बाकी जहाँ चेंज चाहिए पार्टी ने चेंज किया। इस सारे डिस्कशन में अटल जी नहीं आए। डिड अटल जी ट्राई टू टेक द पार्टी अवे फ्रॉम इट्स कोर फॉर सम टाइम एंड फेल्ड? ये मेरा स्टेटमेंट। हाँ, देखिए 80 में जो जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी, अटल जी की तो एक्सेप्टेबिलिटी तब बहुत थी और अटल जी तो सबको स्वीकार्य थे, अटल जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था। लेकिन अटल जी ने क्यों भारतीय जनता पार्टी बनाई? क्योंकि जनता पार्टी के लोग कहते थे कि जिस कल्चरल नेशनलिज्म के विचार को आप लेके चलते उसको छोड़ दो। अटल जी ने जनता पार्टी को छोड़ना स्वीकार किया, वापस से भारतीय जनता पार्टी को उसी विचार के लिए बनाया। सो अटल जी का जो कंट्रीब्यूशन है, अटल जी हमने लिखा है 52 से 67 तक लगातार एक बड़ा कद लेने के बाद भी पार्टी के कंटिन्यू नेशनल सेक्रेटरी रहे। बाद में अटल जी फिर पार्टी के प्रेसिडेंट आए। और अटल जी ने भी जब गांधीनगर में जब 2 सीटें आई तब उन्होंने गांधीनगर अधिवेशन हो या जब हमारा बांग्लादेश के वार के बाद बीजेपी को उस इलेक्शन में कम मिले तो बहुत बड़े हृदय के साथ स्वीकार कर कहा कि पार्टी में इस बारे पे विचार करके एक नए तरीके से डेवलप करना चाहिए। और इसलिए अटल जी का जो पूरा एक कंट्रीब्यूशन जो बीजेपी के लिए रहा है वो इस आइडियोलॉजी के लिए रहा है। अटल जी ने ही भारतीय जनता पार्टी के
उसके बनाने का जो विषय था, जो 6 अप्रैल को तालकटोरा में जो किया, अब अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम हो गया, फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अरुण तालकटोरा गलत है, फिरोज शाह कोटला जो अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। और बाद में बॉम्बे जो अधिवेशन में उन्होंने कहा कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, वो अटल जी की आज दूरंदेशी है कि आज पार्टी इस स्थिति पर आई है। अब देखें, आपने पहले कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है या मिथ है कि माइनॉरिटीज़ को बीजेपी एक्सेप्टेबल नहीं है या बीजेपी को माइनॉरिटीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने ये भी कहा, आपने क्वालिफिकेशन दी कि हम लोग जो हैं, ख़ास करके जो पंडित लोग हैं, पेशे से पंडित हैं, जाति से नहीं है, हम लोग ज़्यादा जाते हैं सिर्फ लोगों के बयानों के ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर। बट वी कांट ऑल्सो ओवरलुक स्टेटमेंट्स लाइक ये 80% और 20% की लड़ाई है, अब्बा जान के लोग ले जाते थे, लुंगी वाले गुंडे आते थे। दिस इज इंडिकेटिंग समथिंग एल्स। इज दैट ओके इन द इलेक्शन? राजनीति में भाषा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी भाषा जो कभी कभी निकल जाती है भावावेश में आकर के, उसका इंटेंशन कोई पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय नहीं होता है। मैं नहीं मानता हूँ। कभी कभी किसी से भावावेश में कोई शब्द निकलते हैं, हमारे लिए भी निकलते हैं। हमें संगी से लेके जनसंगी से लेके तरह तरह के बारे में, हमारे बारे में विषय और धारणाएं। बाकी लोग तो सत्ता में नहीं है ना, आप तो सत्ता में। नहीं, हम सत्ता में हैं, हम सत्ता की संजीदगी को मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि पार्टी का जो अधिकृत विषय वही माना जाता है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। मुझे अगर उस वक्तव्य में आपको कोई बात लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी ने व्यक्तिगत रूप से कहा है तो आप उनसे स्पष्ट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री हैं सबसे बड़े राज्य के। आप उनकी इस बात से सहमत हैं कि 80% और 20% की, अगर 80 और 20 की लड़ाई है यूपी में, तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? 80 और 20 का उनका संदर्भ क्या है, वो अगर स्पष्ट उनके द्वारा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उनको जो मौका मिलेगा तो आप जरूर पूछिएगा उनसे। तो पूछेंगे। और आप अगर पूछ पाए तो आप हमें बताइएगा। मैं जरूर बताऊंगा। ये जब आप किताब लिख रहे थे जी, तो सबसे बड़ा सरप्राइज या लर्निंग आपकी क्या हुई एक इकोनॉमिस्ट के साथ काम करने में क्लोजली? जब आप कोई विषय आप जानते हैं, आपको लगता है मैं इस विषय को जानता हूँ, लेकिन जब उस पर काउंटर क्वेश्चन होता है, उसका पर्सपेक्टिव और नरेटिव के बारे में क्या जाता है, मुझे लगता है आप ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझते हैं। हम कोई बीजेपी हम चला रहे हैं तो ये कोई बीजेपी एक आंदोलन मूवमेंट रहा है, लेकिन इस आंदोलन को सभी पक्षों से देखना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल दल और पॉलिटिकल पार्टी को लोगों की भी आकांक्षाओं के आधार पे उभर करके आना चाहिए। और नेचुरली पॉलिटिकल होने के साथ साथ एकेडमिक, जब आदमी किसी एकेडमिक व्यक्ति को जब आदमी मिलता है तो उसकी धारणाओं में भी स्पष्टता आती है, विषयों में भी स्पष्टता आती है। तो मुझे लगता है ये किताब लिखना इलाजी के साथ मेरे लिए लर्निंग भी रही। और इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें मैंने ग्रेजुएशन के अलावा इकोनॉमिक्स को कभी नहीं पढ़ा, उसको भी मुझे सीखने का अवसर मिला, तो मेरे लिए एक लर्निंग ही रहा। इलाजी तो इकोनॉमिक्स उनको भी समझा देती है, हमारे जैसे जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा। लेकिन इला, the trajectory of India's reform, if we presume that it started in 1980, after the emergency, Mrs. Gandhi lost power and then she realized that she had gone too far to the left. धीरे धीरे उसके बाद शुरू हुआ, and even under Rajiv Gandhi, growth picked up a little bit. Do you identify a turning point in nearly 8 years of Narendra Modi? See, I don't see a turning point. I see slow progress. I see progress. So I see progress on some of the things that were left untouched in the entire 10 years of the UPA period. So things like the big things in the reforms. So reforms are pretty much undoing the socialism of the 60s and 70s. That is what economic reform means. It's also undoing the government. It's undoing excessive government and undoing the socialism. So for me, that the progress would be in terms of some progress on financial sector reforms, which have been put out. Some are in process, and some are being taken forward. In privatization,
that so it's not like one big announcement and a turning point, but as we spoke earlier, it is about the attitude towards privatization has over the last 5, 6, 7 years just slowly, gently changed. Not in a one day very sharp turning. So there away is no from it. 1991 moment. There's no 1991 moment, but I think this party is far more open towards letting markets work rather than that the government decides what to produce, who produce, how much to produce, at what price to sell. The sort of stuff that we were seeing didn't change too much. So what the 91 liberalization did was it allowed people to import or to set up industrial capacity. But a lot of the other dismantling did not happen. Public sector remained in those spaces where there was no role for government. So I see the change in the attitude and I see the progress on that. Many people will say it's not fast enough. Many people will say it should just have, we should have woken up one morning and it should have happened. But I think the way India works is that when something is discussed ad nauseam, we are like, okay, yes, this has to be done. It can't be reversed. So a reform that happens after taking some time is actually far more resilient, doesn't get reversed. Well, Narasimha Rao had said that in an interview when I asked him that how did you take a U-turn on India's economy, lifelong socialist? And he said in a country like India, you can never be seen to be taking a U-turn. So I asked him, so how does Narasimha Rao take a U-turn without anybody realizing he's taking a U-turn? And he said, he thought for a minute and he said with a mischievous smile, suppose the ground under you is moving. Right? So maybe that's what you are saying, that you just carried on discussion for so long that people think ये तो होना ही है और this is normal. भूपेंद्र जी, आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम और करने हैं, तो दो सवाल आपसे हैं. एक तो सवाल ये जो मेरे साथी पूछ रहे हैं आपसे, और ये आपके लिए भी, ये बुक से सवाल नहीं है, ये आपका जो करंट रोल है जो एनवायरनमेंट का. इशाद्रिता लहरी पूछ रही हैं, डू यू थिंक क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट कैन एवर बी एन इलेक्टोरल इशू इन इंडिया? Do you think we'll see a time when the BJP has climate policy as one of its main poll planks, for example? यूरोप में बहुत है ये अभी. ये बनेगा और मुझे लगता है बनना भी चाहिए. ये आज की आवश्यकता है. जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमें अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसमें एक बैलेंस की आवश्यकता है. और COP26 में भी प्रधानमंत्री ने एक लाइफ का मंत्र दिया है. और जब लाइफ का मंत्र दिया है तो ये लाइफ का मंत्र भविष्य में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जुड़ेगा. और मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये बड़ा इशू बनेगा और ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, ये जीवन से अलग नहीं है. तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ये भविष्य में पॉलिसी निर्धारण के लिए, पॉलिसी पे मैंडेट लेने के लिए, पॉलिसी को गवर्नेंस के साथ जोड़ने के लिए जुड़ेगा. मैं मानता हूँ ये विषय बनेगा. और दूसरा सवाल ये है कि ये आपने अभी बुक प्रोड्यूस की है, लेबर ऑफ लव है आपकी, ये आप क्यों रिकमेंड करेंगे कि आपकी पार्टी के जो क्रिटिक हैं वो पढ़ें इसको? मैं ये मानता हूँ कि क्रिटिक्स को अपने तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो जैसा बीजेपी को समझते हैं और जैसा बीजेपी को हम बता रहे हैं, अगर वो गैप फिलअप होगा तो मुझे अच्छा रहेगा और अगर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन होगा तो मैं देने की कोशिश भी करूँगा. आप तैयार हैं? और इसको आपकी पार्टी के जो फैंस हैं, जिनको लोग भक्त कहते हैं, हम किसी को भक्त यूज़ नहीं करते, लेकिन जिनको आप लोग भक्त कहते हैं, जो आपकी पार्टी के फैंस हैं, उनको ये क्यों पढ़नी चाहिए? बोलेंगे हम तो जानते हैं सब कुछ बीजेपी के बारे में. जो जानता है उसको तो कुछ भी नहीं जानने की ज़रूरत है, लेकिन जिसको लगता है कि एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, वो पढ़ें, अपने सुझाव दे तो मुझे अच्छा लगेगा. और जो हमारे जैसे लोग हैं जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो स्केप्टिकल ट्रेनिंग से है, वो क्यों पढ़ें? किसी भी एक आदमी के मन में अगर विश्वास जग गया तो मुझे लगेगा मेरा काम पूरा हुआ. एंड इला, how will people who live in the world of economics, people like you, how will they benefit from reading a book like this? I think most economists and students of economics today feel that they don't understand
why the government, the BJP government, takes certain decisions when it does. Most of the time, they find themselves surprised. And what we've tried to do in this book is to give them that perspective of being able to understand what those decisions are, and therefore to be able to better predict what the government might do. So when there is any economic policy is influenced by politics, and that's why we go back all the way to the history of the party, so that one is able to better understand economic policy that comes from this government. Because when we were growing up, school, college, those years, Jansangh was seen to be a party of the economic right. That's what my parents' generation thought. And then it looks like it came towards Gandhian socialism, etc. So how did that journey take place? I mean, because it's a very intricate ideological issue. गांधीयन सोशलिज्म एक समय बीजेपी ने अडॉप्ट किया, जी हाँ, लेकिन फिर बाद में पार्टी ने उसमें थोड़ा सा अपने आप को सुधारा भी। ये बात को दर्शाता है कि पार्टी अगर एक स्टैंड को लेती है तो बाद में अगर उसमें करेक्शन है तो उसको कर सकती है। ऐसा बीजेपी के इतिहास में बहुत हुआ है। गांधी जी सबसे बड़ी ये मानते थे, मेरे को नहीं लगता गांधी जी कभी संपत्ति को मना करते थे। नहीं, वो तो नहीं किया। वो ये कहते थे इस संपत्ति का उपभोग आपको ट्रस्टी बन के करना। तो गांधी जी का जो ज़्यादा फिलॉसफी है वो अवेकनिंग की ज़्यादा है, कॉन्शियस होकर के आप समाज के साथ जियो, वो ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म और गांधी जी का जो ट्रस्टशिप का सिद्धांत है वो आपस में ज़्यादा मैच करता है। तो हमने उसको सोशलिज्म मानना, मुझे लगता है उसको पार्टी ने अपने आप को सुधारा है। और वो जो इंटीग्रल ह्यूमनिज़म का जो विचार है वो गांधी जी के ट्रस्टशिप के विचार के, जो दीनदयाल जी से आया है, जो दीनदयाल जी से। So what this is very significant. What you're saying is that after the BJP adopted, I think 82 में 81 में हुआ था ये, 80 में गांधीयन सोशलिज्म था, बाद में 4-5 साल बाद फिर उसको फाइन ट्यून किया, उसको समता मूलक समझ, टुवर्ड्स द एग्लिटेरियन सोसाइटी। या so that was part of the evolution. जो पंचनिष्ठा उसका पार्ट है। So going ahead now in the next 5 years, where do you see the BJP? Both ideologically, politically, so you will say BJP will win everything and rule every state. That is taken for granted. Ideologically, where do you see the BJP? And do you see this gap between BJP and minorities, particularly the Muslim minority, narrowing or increasing? मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और मेरा मानना है कि आइडियोलॉजिकली जो प्रधानमंत्री जी ने जो अब मंत्र दिया लाइफ का, ये एक ऐसा है कि भारत का जीवन का जो दृष्टिकोण है नेचर के साथ जीने का, प्रकृति के साथ जीने का, उसी में ही हमारे फिलोसफिकल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल सारे इश्यूज आते हैं कि हम नेचर लवर होके कैसे जी सकते हैं। मुझे लगता है फ्यूचर के एक्सपेंशन में जो आज दुनिया को आवश्यकता है उसको भारत का ये विचार दे सकता है क्या लाइफ का, इस और भी विषय बढ़ सकता है, मेरा अपना मानना है। और ये एक अच्छा विषय रहेगा, दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा मानना है कि दूसरा जो विषय है कि क्या विशेष रूप से मुस्लिम माइनॉरिटी जो ये मान कर के चलते हैं कि बीजेपी एक तरीके से जिसको एक एंटी बीजेपी थीसिस पे जो विषय लेकर के जो विषय चलता है, मेरे को लगता है एक लंबे समय तक पार्टी जिस अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो जहां उनके मन में भी एक कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा। लेकिन बीजेपी अपने गवर्नेंस के किसी भी मॉडल में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, ये बात बीजेपी की तरफ से स्पष्ट है। अब ये बताइए कि कांग्रेस वालों को ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? कांग्रेस वाले क्यूरियोसिटी में भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बुक तो कोई भी पढ़ सकता है। नहीं, लेकिन उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि पार्टी फैमिली डायनेस्टी से निकल करके डेमोक्रेसी की ओर चलने लग जाए। That's an interesting one. And Ila, do you have any parting final words on your sort of flirting with the political world for some time? So I think that those of us who thought that we could just study economics
And, it's enough to study textbook economics and we'll understand economic policy. That view needs to change. And of course, working with you for so many years, you've always pushed me in that direction, that economics and politics is linked. But for all the young people who try to, study economics, to understand economic policy, I think that I would say you can't not understand politics. That's a critical part of what shapes economic policy. So there was a speech that Pramod Mahajan did. Pramod Mahajan used to deliver often, and I am trying to get a recording of it from some place, where in about 3 minutes he would tell you why everything in our life comes from politics. आपकी शादी कैसे होगी, आपके बच्चे कैसे अस्पताल में पैदा होंगे, आप कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वो स्कूल में क्या पढ़ेंगे, कैसे कॉलेज में जाएंगे, कैसे नौकरी. So he used to do it in a very, very good way. I can't repeat it, and I'm trying to source a recording, but I agree with this because everything flows from politics, and that's why we have these mugs that say because politics matters, and we say you can be voting for anybody, you can have any view, but politics is a dehyphenated thing. You can also look at politics in a dehyphenated way because nothing. Forget democracies. Even in China, nothing happens without politics. So politics is everything, and I think it's important for all of us to be students of politics because all our lives are governed by politics, and that's why books like these are a great contribution. I wish more of these would come from all parties because many parties in India are very different from what we imagine. So once again, भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पता है आपको बहुत काम करने हैं, पार्टी के भी करने हैं, आपको मणिपुर स्टेट भी संभालनी है, वो एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टेट है, और उसके साथ साथ आपको इंडिया के क्लाइमेट चेंज गोल्स भी पूरे करने हैं, और उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी काबू उसको चालू रखना है, और इला आपको इस सब के बावजूद थोड़ा हमको भी पढ़ाते रहना है और हमारे व्यूअर्स और रीडर्स को भी पढ़ाते रहना है. थैंक यू वेरी मच. देखिए, लाइफ में ऐसे होता है कि समटाइम्स what you really value is the relationships that develop over time, and the most valuable relationships is where you learn something from the relationship, and for us Ilaji is one of those. Yes. Thank you very much. I agree. Thank you. The rare politicians who will write about their own parties now.